चलो, today we are going to discuss motion in 1D. ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट इसमें है जो हमें डिस्कस करना है, जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हो सकते, तो वो है डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ। ठीक है, तो इसे हम डिफरेंस के फॉर्म में डिस्कस कर लेते। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial position and final position. ठीक है, whereas path length is total distance traveled is path length. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट may be positive, negative और जीरो। ये ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, देन डिस्प्लेसमेंट may be equal to or less than path length. It cannot be greater than path length. ठीक है, यहां पर path length is greater than equal to displacement. ठीक है, if displacement is divided by time interval, we get average velocity. And if path length is divided by time interval, we get average speed. Okay, so in exam you may be asked like ratio, but what we can say about the ratio of displacement to path length? It is because path length को अगर मैं डिनोमिनेटर में ले लूँ तो it is less than equal to 1, but here it is greater than equal to 1 if it is path length by magnitude of displacement है तो। ओके, एक सिंपल सा क्वेश्चन इससे मैं आपको पूछ रहा हूं। लिसन, सपोज ये डिस्टेंस है 100 मीटर and angle subtended is 60. The particle is moving from A to B. Particle is moving from A to B. So here you have to find the path length and
displacement. Okay, now tell me path length. How can we find path length? So here, what is path length? It is arc AB. Yes or no? So it is arc AB. What is the length of arc? R theta. If I consider theta in radian, it is r theta. Your r is 100 meter given, theta 60 means pi by 3. So it is 314 by 3, almost 105 meter. This is the path length. Now what about displacement? Can you tell me displacement? It is AB. But I am asking magnitude of the displacement. But what is the magnitude? Very simple. ठीक है. At present, it is isosceles triangle, and this angle is 60. So all three angles are 60. So it is equilateral triangle, and because it is equilateral triangle, 100 meter. Okay. Any doubt? One more question, and this is from your textbook, NCERT. If you remember this question, चलो, तो A, B, C, D, E, F. अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके था कि एक कोई भी व्हीकल ले लो, कार वटेवर, वो 500 मीटर ट्रैवल करके फिर बराबर 500 लेना है, क्योंकि 500 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके अपनी लेफ्ट साइड पर 60 डिग्री टर्न करता है. अगेन 500 मीटर, देन 60 डिग्री लेफ्ट, लाइक दिस. बराबर यहां से उसने मोशन स्टार्ट की, तो ये उसका फर्स्ट टर्न हुआ, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, लाइक दिस. तो क्वेश्चन वही टेक्स्ट बुक का ही मैं लेता हूं. तो फॉर थर्ड, सिक्स्थ एंड एट्थ turn, you have to find the displacement and path length. Displacement and path length. ठीक है. So first of all, let's discuss about third turn. ओके, तो व्हाट इज पाथ लेंथ? तो ए बी प्लस बी सी प्लस, बराबर, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, तो इट इज अल्टीमेटली 500 इंटू 3, तो 1500 मीटर.
Now what about displacement? So displacement, it is distance between initial position and final position. ठीक है, तो लिसन, यू कैन सी, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है तो ईच ट्राइंगल इज इक्विलेटर ट्राइंगल, तो सबकी साइड 500 होगी। तो ये सेंटर है, ये भी 500 मीटर, ये भी 500 मीटर बराबर। तो ये आपका हो गया 500 प्लस 500 1000 मीटर। समझ में आया? देन फिर कौन सा था? सिक्स्थ टर्न। तो आपका पाथ लेंथ क्या होगा? ए बी प्लस बी सी इन यानी सिक्स्थ, हर एक टर्न से पहले वो 500 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो 500 इंटू 6 3000 मीटर। ये 6 टर्न हुआ। 6 टर्न के लिए डिस्प्लेसमेंट बोलो 0। Why? Because your initial position and final position are same. Now third, sixth and eighth. There are, तो पाथ लेंथ इट इज, मैंने आपको क्या बोला, हर टर्न से पहले वो 500 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो 500 इंटू 8 4000 मीटर बराबर। पर अब आप डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करोगे? तो ये अब आपको फाइंड करना है बराबर। ए सी, तो ये मैं एम ले लेता हूं पॉइंट, तो ये राइट एंगल बनेगा। ठीक है, ये एंगल आपको 30 पता है बराबर। तो आपको एडजेसेंट साइड चाहिए, आपके पास हाइपोटेनस है बराबर। तो डिस्टेंस के लिए पहले कॉस कितना है? 30 बराबर। तो एडजेसेंट साइड ए एम फाइंड करना है, और ये ए बी जो है वो आपको पता है 500। तो ए एम क्या होगा? 500 इंटू कॉस 30 विच इज √3/2। तो 2 को इस तरफ ले लो, तो 2 AM 500 इंटू √3 बराबर। अब हमें ये भी AM और ये भी AM ही है ना, सेम ही होगा ना। तो AC इज 2AM, हमने 2AM फाइंड कर लिया। AC बराबर, इसे मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से डिवाइड करूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1000 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाय 2, 1730 डिवाइडेड बाय 2, तो 865 मीटर बराबर। ये मिल गया आपको डिस्प्लेसमेंट 865 मीटर। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, पर अगर आपने ठीक तरीके से समझा है तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत आएगी बराबर। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जो 50 क्वेश्चंस है उसमें जो जितने भी आसान क्वेश्चंस है वो हमसे होने चाहिए। समझ में आया? इसके बाद का टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी।
तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि वन डायमेंशनल है तो मैं इसे स्पीड ही लेता हूं। अगर जब डायरेक्ट वन डायमेंशनल है और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है तो फिर वो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड सेम है। ठीक है, अब आपको जब भी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे, यू हैव टू फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड टोटल टाइम टेकन। बस यही दिमाग में, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है उस इंफॉर्मेशन से आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड फाइंड करना है, टोटल टाइम टेकन फाइंड करना है। बराबर, तो एवरेज स्पीड न्यूमरेटर में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड और ये होगा टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपन टोटल टाइम टेकन। आया समझ में? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपन टोटल टाइम टेकन। कोई भी हो क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी है उससे आपको ये दोनों चीजें फाइंड करनी है और उसका रेशियो ले लेना है। बराबर, अब इसमें केस 1 में डिस्कस करता हूं। बराबर, तो सपोज d1 d2 and so on dn distances are traveled with speeds v1 v2 and so on vn रिस्पेक्टिवली। बराबर, यानी d1 डिस्टेंस जो है वो v1 स्पीड से ट्रैवल हुआ है, d2 डिस्टेंस जो है वो v2 स्पीड से ट्रैवल हुआ है, लाइक दैट। तो मैंने तो आपको बोला आपको क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा, d1 प्लस d2 एंड सो ऑन dn। फिर हमें चाहिए टोटल टाइम टेकन, तो t1 प्लस t2 एंड सो ऑन dn। पर टाइम की तो इंफॉर्मेशन है ही नहीं, आपके पास सिर्फ डिस्टेंस एंड स्पीड है। तो आपको पता है स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड। बराबर, तो t1 होगा d1 बाय v1, ये होगा d2 बाय v2 एंड सो ऑन dn बाय vn। तो एवरेज स्पीड आपकी क्या होगी, d1 प्लस d2 एंड सो ऑन dn अपन d1 बाय v1 plus d2 by v2 and so on dn by vn। समझ में आया? तो ये आपको याद रखना है, जब आपके पास डिस्टेंसेस एंड स्पीड की इंफॉर्मेशन है तो। बराबर, इसका भी एक स्पेशल केस लेते हैं। सपोज d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d, यानी सिर्फ मोशन के दो ही पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का डिस्टेंस d1 भी d है, सेकंड पार्ट का डिस्टेंस d2 भी d है, यानी डिस्टेंस ही सेम ट्रैवल्ड है पर वो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो स्पीड है वो अलग अलग है। बराबर, तो अभी आपका ये क्या हो जाएगा, पहले तो दो ही पार्ट है तो ये फॉर्मूला इस तरीके की होगी। ठीक है, अब d1 और d2 आपका d है, d बाय v1 प्लस d बाय v2
तो 2d, d कॉमन 1/v1 प्लस 1/v2, डी कट। तो इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2v1v2 अपन v1 प्लस v2। समझ में आया? तो जब भी सिर्फ दो ही पार्ट हो मोशन के तो आपको ये वाली फॉर्मूला यूज करनी है। आया समझ में? बराबर। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देवांश moves to school from home with speed 60 km/h and returns home at speed 10 km/h। फाफा मार तो जाए ना पाछो तो। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। अब इसमें देखो डिस्टेंस फिक्स, जरा वो घर से स्कूल गया, स्कूल से घर आ रहा है, तो डिस्टेंस तो सेम ही है, तो सेम डिस्टेंस है बराबर, पर अलग अलग स्पीड से ट्रैवल हुआ है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली एप्लीकेबल हो गई। तो अगर आपको याद है, आपको समझ में है कि हाँ यहाँ पर वो डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा 2 × 60 × 10 अपन 120/7। बराबर, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिखाया कि ये फॉर्मूला आप कब यूज करोगे। फिर ये जो है इसका भी मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं ओरली, सिर्फ आपको समझना है कि सपोज आपको ये दिया गया है कि मोटर साइकिल ट्रैवल सर्टेन डिस्टेंस, फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड बाय स्पीड, सपोज दिया है 30 km/h। नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड बाय दिस स्पीड एंड रिमेनिंग 1/3 डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड बाय दिस स्पीड। तो आपको इस तरह से 3 स्पीड दी है, पर हर बार डिस्टेंस सेम है, वो फर्स्ट 1/3, सेकेंड 1/3, थर्ड 1/3। यानी अगर मैं टोटल डिस्टेंस ले लूँ 3d, तो फर्स्ट 1/3 हुआ d, फिर उसके बाद वाला d, उसके बाद वाला d। तो यहाँ पर d1 d2 बराबर d3 रहेगा d, फिर d बाई सपोज 40, d बाई 50, d बाई, तो d कॉमन निकालेगा, ऊपर न्यूमरेटर से कट हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर देने का। तो इस तरीके के क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हो सकते हैं ना। ये जो हमने डिस्कस किया ये केस 1 था, अब हम डिस्कस करेंगे केस 2। चलो केस 2, इसमें आपको टाइम इंटरवल एंड करस्पॉन्डिंग स्पीड्स दी है। सपोज ड्यूरिंग टाइम इंटरवल्स t1 t2 and so on tn, speeds are
V1, V2 and so on Vn. ठीक है. सपोज ड्यूरिंग टाइम इंटरवल्स T1, T2, T3 अप टू Tn स्पीड्स आर V1, V2, V3 अप टू Vn. बराबर. तो इसके लिए हमें एवरेज स्पीड निकालनी है. बराबर. तो एवरेज स्पीड जब भी फाइंड करनी है आपको क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड. तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड d1 प्लस d2 एंड सो ऑन dn. पर डिस्टेंस तो आपको दिया नहीं है. तो v1 t1 प्लस v2 t2 एंड सो ऑन vn tn. तो ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड. फिर इसी तरह से टोटल टाइम टेकन. तो t1 प्लस t2 एंड सो ऑन tn. तो आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस ट्रैवल्ड v1 t1 प्लस v2 t2 एंड सो ऑन vn tn अपन t1 प्लस t2 tn. समझ में आया? ठीक है. इसमें भी एक स्पेशल केस ले सकते हैं. सपोज सारे टाइम इंटरवल सेम है. t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t3 इज इक्वल टू tn इज इक्वल टू t. सारे टाइम इंटरवल t है. तो क्या हो जाएगा? ऊपर से t कॉमन निकल जाएगा. और नीचे t प्लस t n टाइम्स है तो nt. तो tt कट. तो आपको एवरेज स्पीड क्या मिली? v1 प्लस v2 vn बाय n. तो जो नॉर्मल एवरेज आप लेते हो बराबर, वो कब एप्लीकेबल है? हाँ, जब टाइम इंटरवल सेम हो तब जो एवरेज निकलती है वो नॉर्मल एवरेज है. समझ में आया? तो इसमें सपोज ऐसा क्वेश्चन है कि रमेश वॉक्स 2 hours daily. During first 1 hour, his speed is 5 km/h and during second 1 hour, his speed is 7 km/h. Find his एवरेज स्पीड. अब इसमें आपको पता है कि टाइम सेम है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो. और इसके दो ही पार्ट है. तो एवरेज स्पीड v1 प्लस v2. अब n इसमें क्या है? 2. बराबर. तो 5 प्लस 7 बाई 2 6 km/h. आया समझ में? कितना आसान है ना फिजिक्स. ठीक है. आप लोगों के रिएक्शन से मुझे कितना सुकून मिलता है पता है आपको? फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी.
आपको पता है आप लोग कभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, फाइंड ही नहीं कर सकते। हम जो करते हैं वो हमेशा 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 एवरेज वेलोसिटी ही होती है। आपको कुछ ऐसा करना है कि एवरेज वेलोसिटी ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बने, और इसके लिए कंसेप्ट क्या है कि टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल लो, बराबर, तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए क्या मिलेगा, एवरेज वेलोसिटी, बराबर। पर अगर टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल होगा तो उस टाइम इंटरवल में स्पीड चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि उस आपने ब्रेक अप्लाई किया या एक्सेलरेट किया तो भी उसके लिए भी टाइम लगेगा ना। तो अगर आपने टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल लिया है तो यू कैन कंसीडर कि उस टाइम इंटरवल में स्पीड कांस्टेंट है, तो फिर जो एवरेज मिलेगी वही क्या बनेगी, इंस्टेंटेनियस। ये इंस्टेंटेनियस कोई भी क्वांटिटी हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस फोर्स, व्हाटएवर, सबका कंसेप्ट यही है। आप कभी कोई क्वांटिटी इंस्टेंटेनियस मेजर ही नहीं करते, वो हमेशा एवरेज होती है। पर एक्सट्रीमली स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए आपने उसे फाइंड किया है और इतने कम टाइम इंटरवल में उस क्वांटिटी में चेंज पॉसिबल नहीं है, तो उस टाइम इंटरवल की हर इंस्टेंट के लिए ये एवरेज वाली वैल्यू ही इंस्टेंटेनियस कंसीडर होगी। बराबर। फाइंड कैसे करना है, तो जैसे अगर मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है तो सपोज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रैवल है, डेल्टा टी टाइम है, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी। पर मुझे इसे वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए लेना है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो गया, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी आपको क्या दे रही है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है। अब यहां पर सपोज ये क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 3t² प्लस 5t प्लस 6, और आपसे पूछा गया है कि फॉर t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू 2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड at t is equal to 2 second इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है। समझ में आया? तो बोलो एवरेज कैसे फाइंड करेंगे। इंस्टेंटेनियस तो आपको पता है कि आप डेरिवेट करोगे और फिर टी की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो आपको इंस्टेंटेनियस तो मिल गई, पर ये क्वेश्चन मैंने एवरेज के लिए ही लिया है। तो यहां पर मोशन एक्स एक्सिस पर हो रही है, समझ में आ रहा है। सपोज t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर वो यहां पर है और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर वो यहां पर है। जब आप इसमें t की वैल्यू पुट करोगे तो करस्पॉन्डिंग पोजीशन मिलेगी, पोजीशन यानी ओरिजिन से डिस्टेंस, तो आपको ये डिस्टेंस मिलेगा इनिशियल और ये मिलेगा फाइनल। तो फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको क्या मिल गया, डिस्टेंस ट्रैवल मिल गया, फिर उसे टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो। यानी यहां पर आपको क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट। कैसे फाइंड करोगे, टी की जो इनिशियल वैल्यू पुट करो तो इनिशियल पोजीशन मिलेगी, टी की फाइनल वैल्यू पुट करो तो फाइनल पोजीशन मिलेगी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट मिल गया, फिर उस डिस्प्लेसमेंट को टाइम इंटरवल से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एवरेज वेलोसिटी। समझ में आया? तो x एट t इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू 0 लोगे तो 6 मीटर, बराबर। सपोज ये मीटर में है। अब x एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 3 6 का स्क्वायर प्लस क्या 6 2 लेना है ना, मैं खुद को बोल रहा हूँ, आपको थोड़ी मैं बोल सकता हूँ, तो घर जाना है सही सलामत। चलो बराबर, तो 12 प्लस 10 प्लस 6 28 मीटर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 28 माइनस 6 22, बराबर। तो एवरेज वेलोसिटी, बराबर, तो डिस्प्लेसमेंट 22 टाइम इंटरवल 2 11 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, 11 मीटर पर सेकेंड। फिर अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v यानी dx बाय dt, तो इससे डेरिवेट करोगे तो 6t प्लस 5, t की वैल्यू 2, 17 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? सब्जेक्ट इतना आसान है बराबर। फिर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन तभी मिलेगा जब वेलोसिटी चेंज होगी। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन जीरो, बराबर। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो। तो एवरेज एक्सेलरेशन अगर चाहिए तो वो क्या होगा? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। और अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए तो ये होगा डी वी बाय डी टी, बराबर। अब अगर सपोज किसी केस में एवरेज एक्सेलरेशन एंड एवरेज वेलोसिटी पूछिए, और एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो वो भी जो अभी मैंने कंसेप्ट समझाया उसी तरीके से आपको फाइंड करना है, बराबर। जैसे मैंने अभी लिया था, मैं वही क्वेश्चन लूं, x इज इक्वल टू क्या था? प्लस, इसमें तो टी स्क्वायर चला जाएगा ना, वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन ही नहीं मिलेगा। एक्सेलरेशन कौन? 3t स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6, ऐसा मैंने कर दिया, बराबर। तो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए आपको क्या फाइंड करना है? एवरेज एक्सेलरेशन एंड फॉर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो पहले आपको वेलोसिटी चाहिए, तो v आपको क्या मिलेगा? dx बाय dt, तो 9t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 4। पहले मैं, अब मुझे एवरेज एक्सेलरेशन के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा? चेंज इन वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करो, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करो, फिर उसका चेंज फाइंड करो और उसे टाइम इंटरवल से डिवाइड करो। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो 4। वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 9 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 प्लस 4, 36 होगा ये, प्लस 20 प्लस 4, 60 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? 60 माइनस 4, 56 मीटर पर सेकेंड, बराबर। तो एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा v बाय डेल्टा t, दैट इज 56 बाय 2, 28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपने फाइंड किया एवरेज एक्सेलरेशन। अब आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए, तो वो होता है dv बाय dt। तो इससे डेरिवेट करोगे तो 18t प्लस 10, t की वैल्यू पुट करनी है 2, तो 36 प्लस 10, 46 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में सबको? कोई प्रॉब्लम?